Hello, dear students. We are going to revise the poem The Voice of the Rain very quickly. The poem is written by Walt Whitman. And who art thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. The poem starts with a question. And who art thou? कौन हो तुम? Said I. I here stands for the poet. So the poet asks a question, and who art thou? And strange to tell, you will find it very strange, you will find it unbelievable, but the rain actually gave me an answer, as here translated. And the answer that was given by the rain to the poet has been translated for us. The poet has translated that answer for the readers. The first two lines of the poem are by the poet, and third line onwards we have the verse, we have the answer that was given by the rain. And the rain said, I am the poem of earth. I here in this line stands for the rain. In the first line I stands for the poet. वहाँ पे कवि ने एक क्वेश्चन पूछा है, एक प्रश्न पूछा है, हु आर दाओ, कौन हो तुम? और बारिश ने जवाब दिया पोएट को. अब बारिश ने जो जवाब दिया है, बारिश अगर कुछ कहेगी तो आपके मेरे आम लोगों के समझ में नहीं आएगा बारिश का दिया हुआ जवाब. लेकिन पोएट जो है, एक कवि जो है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है. अगर नेचर कुछ कहती है तो पोएट समझते हैं उसको. जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. तो बारिश ने जो जवाब दिया पोएट को, उसको थोड़ा सीधे शब्दों में, थोड़ा सरल शब्दों में हमें समझाया है पोएट ने, रीडर्स के लिए कहा है. और वो थर्ड लाइन से शुरू होता है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. अब बारिश ने कहा कि कवि महोदय, आप कविता लिखते हैं, मैं भी कविता हूँ, लेकिन मैं वो कविता हूँ जो अर्थ ने लिखी है. मैं अर्थ की लिखी गई कविता हूँ, मैं पृथ्वी की लिखी गई कविता हूँ. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe. I rise, I go upward, I descend. Now these three words will remind you of something which you must have read in your science class, maybe in 8th, 9th, 10th, the rain cycle. You all know about the rain cycle, right? This is evaporation, then condensation, and finally precipitation. So the poem says, eternal I rise. Now this is the procedure of evaporation. जब वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं, एवेपोरेट होते हैं. इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल. तो जब भाप बन के जब पानी उड़ता है, ऊपर जाता है, तो वो किसी को दिखाई नहीं देता होता ना, कि अभी देखिए अभी समुद्र में से भाप निकल रही हैं, वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके ये बादल बन रहे हैं. वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो इम्पैल्पेबल होता है, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड. बट वो भाप ऊपर जाती है, वो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, एंड दे मेक क्लाउड्स. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. जो वाटर वेपर्स ऊपर गए थे, उन्होंने क्लाउड्स बनाए. तो जो चीज़ पहले वाटर वेपर्स थी, बाद में वही चीज़ जाके उसने क्लाउड्स बना दिए. सो द फॉर्म इज चेंज्ड एंड इन अ वे इट इज स्टिल द सेम, बिकॉज इट इज स्टिल वाटर, राइट? सो ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. पैराडॉक्स. बदल गए हैं और नहीं बदले हैं, वैसे ही हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स हैं. उन्होंने जाके बादल बनाए तो फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन देखा जाए तो वो तो अभी भी वही चीज़ है. क्या है? पानी है. इट इज़ येट स्टिल इट इज़ द सेम. देन आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स. एवेपोरेशन हो चुका है, फिर कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, कंडेंसेशन हुआ, एंड नाउ प्रेसिपिटेशन.
The rain descends. Descends means to come down. I descend to lave the draughts at me's dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin. So I come down and I wash away the draughts. I make everything so beautiful. I clean the tiniest particles of dust and I make everything so beautiful. I make everything neat and clean. And all that in them without me were seeds only. Now the rain is telling us its functions, its importance, its significance. How significant is the rain for the earth, for nature? अगर बारिश ना हो तो जो बीज हैं वो ज़मीन में दबे रहेंगे. They will remain latent, they will remain unborn. These seeds only born when it rains, when they get water, and that water is provided by the rain. वो बीज जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं वो दबे ही रहेंगे, वो स्प्राउट नहीं होंगे, वो उगेंगे नहीं अगर उनको पानी नहीं मिलेगा, और वो पानी उनको मिलता है बारिश से. तो इसीलिए रेन ने हमें बताया है कि रेन की कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, एंड दिस वे whenever I come down, whenever it rains, the earth gets a new life. The earth which is the birthplace of the rain. यहाँ पे देखिए बारिश कह रही है कि जहाँ से मेरा जन्म होता है उस जगह को मैं नई ज़िंदगी देती हूँ. कौन सी है वो जगह? वो जगह है धरती, ये ज़मीन. यहीं से वाटर वेपर्स हैं जो ऊपर उठते हैं, जो बादल बनाते हैं. ज़मीन से जो है बारिश की उत्पत्ति होती है. जन्म कहाँ से होता है बारिश का? बारिश का जन्म होता है ज़मीन से, धरती से. और उसके बाद जब बादल बरसते हैं तो उसी धरती को एक नई ज़िंदगी देते हैं. एवरीथिंग इज़ रिजुवेनेटेड एंड इट शोज़ द रेस्टोरेटिव पावर्स ऑफ द रेन, द रिजुवेनेटिंग फोर्स ऑफ द रेन. हर चीज़ को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, सब कुछ साफ सुथरा खिला खिला हो जाता है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. आई गिव अ न्यू लाइफ टू माई बर्थ प्लेस. जिस जगह से मेरा जन्म होता है उसी जगह को मैं एक नया जन्म देती हूँ. क्या है वो जगह? वो जगह है ये अर्थ. एंड आई मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. आई मेक एवरीथिंग प्योर. आई मेक एवरीथिंग सो ब्यूटिफुल. आई मेक दिस अर्थ ब्यूटिफुल. दिस अर्थ विच इज़ माई बर्थ प्लेस. यहाँ तक कि जो लाइंस थी प्यारे बच्चों, ये वो जवाब था जो बारिश ने पोएट को दिया था. पोएट ने जब सवाल पूछा था, सबसे पहले एक सवाल ही पूछा था, कौन हो तुम? और इन सारी पंक्तियों के ज़रिए बारिश ने जवाब दिया है. बारिश ने बताया है कि वो कौन है, कि वो कैसे जन्म लेती है बारिश, और क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके काम हैं, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है इंसान के लिए. Now the last two lines of the poem, very important lines, dear students, pay attention. These lines in parenthesis, ये जो ब्रैकेट में जो आपको लाइंस दिख रही हैं, these lines again, these lines are very important because these lines draw a parallel between a poem and rain. You know, प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है, बारिश ने बताया ना कि वो कितने सारे काम करती है ना. हर चीज़ को एक नई ज़िंदगी दे देती है. जहाँ से बारिश को ज़िंदगी मिलती है, बारिश उसी जगह को एक नई ज़िंदगी देती है, एक नया जन्म देती है. तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है बारिश की. लेकिन मैं, आप, हम सभी, क्या हम ठहर के कभी सोचते हैं? क्या हम ठहर के कभी अप्रिशिएट करते हैं कि देखो बारिश हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? अक्सर ही हम नहीं करते. लेकिन बारिश इस वजह से खफा नहीं होती कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो मैं अपना काम नहीं करूँगी. बादल तो फिर भी बरसते हैं, बारिश फिर भी होती है, चाहे कोई उसकी सिग्निफिकेंस को समझे या ना समझे, लेकिन बारिश अपना काम करती है. अब यहाँ पे इसी तरह से वही सिग्निफिकेंस दिखाया गया है, और वो चीज़ है जिसके साथ एक समानता दिखाई गई है, वो है एक कविता या एक गीत. द पोएट सेज, माई सॉन्ग विच इशूज़ फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. द बर्थ प्लेस इज़ द पोएट्स हार्ट.
कवि के दिल से, एक कवि के हृदय से कुछ शब्द निकलते हैं और उन शब्दों को बहुत सुंदर तरीके से पिरोकर कवि एक कविता करता है। वो कविता फिर रीडर्स के हाथ में जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कविता हर रीडर को पसंद आ जाए। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। रैक्ड और अनरैक्ड, रिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड, अप्रिशिएटेड, नॉट अप्रिशिएटेड, बट द poem always has a very special place in the poet's heart. It always comes back to the poet's heart. It always remains very very special to a poet's heart. अब यहाँ पे ये समानता कवि ने दिखाई है कि देखिए बारिश की तरह है। बारिश को चाहे कोई अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन बारिश अपना काम करती है। इसी तरह से अगर मैं कोई कविता लिखता हूँ, मैं कोई कविता, कोई गीत अगर मैं लिखता हूँ, तो वो जब मेरे पाठकों के पास पहुंचता है, मेरे रीडर्स के पास पहुंचता है, तो चाहे रीडर्स उसको अप्रिशिएट करें या ना करें, इट ऑलवेज कम्स बैक टू मी विद लव. इट ऑलवेज रिमेन्स वेरी वेरी स्पेशल